Okay. no food. Yeah. So what motivated you to become a breatharian? Ah, because it gives unconditional love for the world. Okay. Because it connects us to everything, all sentient beings. Right, So right, right. it's a true ahimsa. Right, right, right. True, ahimsa. True, very true. Yeah. Pure. Basically, yeah, yeah. I have also been with, stayed with breatharian Ali Tom Al Amin. He is from USA Yeah. He's a and friend of he mine. was in India. Yeah, yeah. Yeah. He was in India and I was with him. We stayed for 2, 3 days. And one thing that I want to tell you is though they are not eating or they are not drinking water also, they are more energetic than a normal person. And we had gone for a mountaineering camp. Mm. Now, people have a concept that you should eat if you want to do the work. So people had started eating before we started a camp to go on the mountain. And people, it was a winter season. Despite the same, people had carried a lot of water with them. And they started walking. We were around 25 people, along with the Britharian Mr. Ali Tom Al Amin. So on the way, people started sweating and they felt hungry. So they sat down, they ate something, took some rest, then they went forward. After some time, again they went hungry, sweating, they ate, they drank, they went. Again, and third time also they did the same thing. Ali Tom was just walking as it is and didn't even sit. He was standing there. And then ultimately we went on the mountain. We had a campfire and we slept there at night. For everybody, it was a tiring journey. Ali Tom was smiling and walking all the way. So the first thing to understand what I want to tell you is we are made of 5 elements. And our food is also made of 5 elements. What we eat. If we can take the 5 elements in the purest form, then we don't have to eat the food. Air, we take it in purest form. Space also is there. Water, the question comes is of water. So when we breathe also, humidity is there. There is a porosity on the skin also through which humidity can enter. Sunlight obviously is there. The more you expose your body, sunlight comes. And you walk barefooted. When you walk barefooted, you are connected to the earth element also. Now, if you are taking the 5 elements in the purest form, then you don't have to take anything from your mouth. It's a matter of practice. The more you are divine from within, means there are low losses. There are no losses within the body. Whatever you eat and whatever we work, we do, whatever we think, if it is negative and if it is there, there are losses in the body. Now, if you are divine from within, if you are pure from within at the body level, at the mind level, at the emotion level, then you don't require any external support. You can stay divines, you can stay without food. And a lot of Indian rishis, Mahatmas have done it in the history. They have stayed, they were meditating. Basically, they were at an elevated state of mind. And for months and months, they didn't eat the food. And this is a fact. When people we listen to this in the history, we feel this is a story, or maybe it is possible at that time. Now it is not possible. But the fact is, today also there are, if I'm not mistaken, around 5,000 Breatharians around the globe, and they are practicing this. And what I understand is it's because of the divinity within your body that makes you Breatharian. To abstain from food,
to abstain even from water for months and months. Now, I would like to know what is your say on this? Yes, I agree. It is divine within that we need to cultivate. So meditation, like Mataji teaches, gratitude, Yeah. service, silence, nature, simplicity. All these things we cultivate and we build them back up because we're so polluted. And once we build them back up and we become pure again, back to our natural state. That is our natural state. We forgot. Yeah, so this is the natural state in which we can resonate. We can resonate with the nature. Yes. Right now, what has happened is we have got so many losses and negativities. And when you said gratitude, gratitude should always be accompanied with forgiveness. Yes, absolutely. Most of the problems and the diseases what we are facing is lack of forgiveness and lack of gratitude within us. And because of this, we are facing, the whole world is facing the problem, the wars, and all the illness that we are facing, and we are finding the whole world is facing a bigger war of stress and anxiety and various diseases. So how was your journey, and till now where have you reached, and what do you intend to do? Tell me. So my goal is to be pranic full time because Yeah. now I do just periods of prana Okay. and silence and living in nature. I live in caves in India. Okay. So yeah, to stay full time in India and radiate unconditional love in nature and all sentient beings. Okay. So the craving for the food has vanished, or how exactly it is right now at the food level? Where do you stand? It's still there, but slowly, It's it's a subsiding. process. It's Yeah, a yeah, process. it's a process. It's subsiding. Yes, yes. Right, The right, right. So, more we do meditation, mhm, the more we connect with our divine nature and remind ourselves that we are divine, then there's no separation. right, right, So right, right. then we are one with nature, and then it happens. So now, what motivated you to go breatharian? What motivated you to go breatharian? I received a message from the divine. Yeah. Okay, okay. The message was be silent and you'll have unconditional love for yourself. Stop eating and you'll have unconditional love for the world. So for unconditional love with the world, eating is one of the phenomena which you should try to abstain or restrict to the lowest possible level. And what I understand is basically energy doesn't come from food, energy comes from divinity, from the space, and the divinity from within. There are two energies. One is from within and one is from the space. So if you are able to purify yourself, you will experience the divinity from within. And obviously the divinity from the space will be showering on you all throughout your journey, and then staying stable, equanimous all throughout your journey is very much possible. So you are alone, or you are, how many people are there with you right now? One. Yeah, it is always a lone journey. Now, who was the motivator for you? Means, did you go work under somebody's guidance, or how exactly it is? Well, Jasmuheen in Australia, this Australian lady, was the first inspiration. But Okay. Eli Tom Obviously. also was inspiration. He and I did many retreats together. Okay. Yeah. Ali Tom And is likely to come to India. Let me add. That's what I got an information. He's likely to come to India. yeah, he'll come back. He'll come Yeah, back. yeah, yeah.
In fact, I had taken a live Zoom seminar with him also in India. Oh, nice, That nice. was few years back. Okay, yeah. Right, right. He's So, any specific message that you would like to convey to the world or to the humanity? Because seeing the wars and all the diseases and the stresses and the animosity and the hatred and the ill will that is falling, we are you're so. that we are carrying. Did you meet Elitomen Utkarshi? Hello. Huh? Yeah. Hello. Yeah, I'm not getting you. Can you repeat? Did you meet Elitomen Utkarshi? Then one lady was also there with him. I don't remember her name. She was a young lady. She was also a Bredarian. I happened to talk to her also, Yeah, but yeah, I'm not. I'm unable to recollect her name right now. yeah. What was the location? Location. So, what do you have to say about food addiction? The whole world is food addicted, and everybody thinks, huh? Is the connection okay? Can you help? Yeah. 1 minute, we're trying to Can you get repeat? better connection. Can you hear me now? Yeah. Okay. Yeah. Can you hear now? Yeah. Yeah. I can hear you. Yeah. So I think a message, one reminder that's important is to remember that we are sitting in the infinite. Okay. Okay. So I'm sitting in this room, but I'm also sitting in this province in Himachal. I'm also sitting in India. I'm also sitting on planet Earth. I'm also sitting in the galaxy. I'm also Okay. sitting in the infinite, right? These Right. are all Right. correct, Right. right? Right. So when we remember that we are the infinite, then there's no separation. Very true. Very true. Very true. Ultimately, experiencing the divinity from the infinite. Yes. So, from what you can say is from electrons to infinite, we are divine. So when we remember that, then peace can Right. happen. Yeah. 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 'Cause there's no separation between you and me, this person, this person. They No. are ultimately creation of the same divine power, playing their own roles. Yes. So Now, we can remind ourselves all day, I am infinite. I am yeah. Yeah. infinite. I'm sitting in the infinite. Yeah. Yeah. Mm. I'm surrounded in by infinite. Yes, and I am made up of infinite. Yeah. Yeah. Yeah, energy, right? Energy. Ultimately, we are all energy, Yeah. and Yeah. we should vibrate at the highest frequency. Yes. Now, if you don't mind, what is your physical age now? It's not important. I'm right, right. Now,
going at a solo journey in on the mountains Mm. and staying in the caves alone with this physical body, do you experience any fear? Yes. But that's my teacher. Yeah, Yeah. yeah. Fear is our teacher. Fear is our friend. Fear is not something to stay away from. We invite fear. Oh, fear. Hello. Welcome. See, basically, as far as the Indian rishis are concerned, they had a big kingdoms. They were means they had a lot of they were empires, so they had a lot of wealth and prosperity and everything. They left everything and they went to jungle, stayed alone in jungle. They didn't even bother to have the clothes or food, anything. They stayed in the nature without any fear that, oh, so many animals are there, so many creatures are there, they will bite, they will something. No place to sleep, no place to sit. All everything it is in forest. Hmm. Had Yeah. they got any fear, they would have not gone to forest and Yeah. stayed alone with all the carnivorous animals surrounding there and so many creatures, snakes, and so many things. Despite the same, because of their pure intentions, they became strong. They accepted odds and even. They didn't even bother for the cold or the hot or the water or the rains or whatever it is, the mud and the dirt and whatever it is, the wind and whatever had come on the way during the journey. They accepted it. So that is why they were brave. Hmm. What we in India we called as Veer. Hmm. So many of our gurus, Gautam Buddha, Mahavir, they left everything and they went in jungle for a deep meditation and pure refinement from within. And what I also understand is once you are divine, the knowledge comes from within. No scriptures are required then. The knowledge on the divinity comes from within. The ultimate knowledge also comes within. And what the so-called our scientists are doing in a very big laboratories, it can manifest from our within us only. So big gadgets, big technological things are not required. Sitting alone in the purest form, all the divine thoughts and divine elevated phenomena can we can understand. So the laboratory also is within us only. The research laboratories are within us. So any specific message you would like to convey to our people around in India and people sitting around you? Ah, that we have everything we need already. We have everything we need already in abundance. Right, 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 right. Right, right, right. Only Uh, thing we have to manifest it. uh, cultivate. I use Yeah, the word cultivate. cultivate. To remember, Yeah, yeah, remember. So it takes effort, yeah, virya. yeah, yeah, yeah. It takes some discipline to to go back to our natural state. Right, But right, our right. natural state is already available. It's Yeah, yeah, available. yeah. Right, Mm. right, right. So internal purification is the ultimate goal. Yes, Yeah, purifying the heart, to yeah, purify yeah, the heart. yeah, yeah, yeah. Yes. Right, 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 right. Fine, it was nice talking to you. I will be talking to Right. you later part also. Now you Mhm. can just see the slides. Maybe you understand something. The slides are in English. You can Okay. just observe the slides. I will be speaking in Hindi. Obviously, the language may not be, you may not understand, but from the slides you may understand something. Okay. Right? Thank Thank you. you. Thank you. Have a great day. Oh, And I'm really blessed to be talking to you, a divine personality like you. Thank you. कैसा है आज की तैयारी कैसी है? कल जो मैंने होमवर्क दिया था किया है आपने?
अभी यहाँ जो दिव्य व्यक्ति जो आए थे हमारी स्क्रीन पे, आपके सामने, आपके समक्ष, क्या बताया उन्होंने? किसी को कुछ समझ में आया? आप हिंदी में समझा दीजिए थोड़ा हाँ, मैं तो। वही समझाता हूँ, बहुत सारांश बहुत छोटे में बताता हूँ कि उन्होंने यही बताया है, सब कुछ हमारे भीतर है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपने को जगाने की जरूरत है, अपने को शुद्ध करने की जरूरत है, शरीर के लेवल पे, मन के लेवल के, हृदय के लेवल पे, शुभ भाव के लेवल पे आना है। यही चीज उन्होंने बताई है। बाहर कुछ संपूर्ण है, हम संपूर्ण हमको मिला है। और मैं इन्फेनाइट हूं। इन्फेनाइट का मतलब क्या? कोई हिंदी वर्ड बताएगा? अनंत हूं। हम अनंत के साथ जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स के साथ से हम बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चीज होता है। इलेक्ट्रॉन से फिर एटम बनता है, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से हमारा ये स्थूल शरीर बना है। ये स्थूल शरीर से भी, ये स्थूल शरीर है। आज आप हिमाचल में हो, आप आश्रम में हो तो आश्रम से जुड़े हो, हिमाचल है तो हिमाचल में जुड़े हो, भारत में हो तो भारत में हो, भारत से जुड़े हो, विश्व हो तो विश्व से जुड़े हो। ये पृथ्वी ग्रह जो है सूर्यमंडल से जुड़े हुए हो, और पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हो। तो पूरे ब्रह्मांड आपका भला करना चाहता है। एक अणु से लेके पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। आप तैयार है या नहीं, बात यही है। तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी हमारे पे शुद्धता लाने की। अभी हमारे हिसाब से तो ये स्त्री है, अकेली रहती है गुफा में जाके। आज आपको बाहर जाना पड़ेगा तो भी भय आता है कि नहीं, डर लगता है या नहीं? हर चीज में डर लग रही है। पूरा ब्रह्मांड आपके साथ में है। निर्भयता लानी पड़ेगी। तो ये निर्भयता बिल्कुल हमें लानी पड़ेगी। आज करीब करीब हम हर चीज से भयभीत है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इसी के कारण हम बीमार हैं। मैंने कुछ होमवर्क बताया था, किसी ने कुछ किया है? कल किया है किसी ने? कल क्या होमवर्क बताया था मैंने? हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आवाज आ हम रही है मेरी? जी सर। आ रही है आवाज। तुम कल मैंने आपको कुछ होमवर्क करने के लिए बताया था, किसी ने किया है? होमवर्क पहला याद है कि नहीं पूछ लीजिए। ये भी तो है। वो याद नहीं, अभी मैंने याद दिलाई थोड़ा सा। चलो ठीक है। अभी अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आधा घंटा तो ऐसे ही चला गया है। तो मैं स्लाइड स्लो चालू कर देता हूं। तो अभी यहां से देख लीजिए, इस स्लाइड को आप बराबर याद रखिए। बाहर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी इंद्रियों से आती है, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आ रही है। हम भीतर में क्या जगाते हैं? शांति जगाते हैं, खुशी जगाते हैं, या दर्द जगाते हैं? ये चीज मैंने बोली थी, आप आपके साथ बात करो और आप खुद सोचो और लिखो। और दूसरी स्लाइड भी मैंने बताई थी, हम बाहर क्या बेचते हैं? शांति बेचते हैं, खुशी बेचते हैं, या दर्द भेज रहे हैं? ये दो स्लाइड मैंने आपको याद रखवाई, बोला था याद करने के लिए। और कल मैंने ये भी बताया था, हमारा मनुष्य का मन जो है कितना अद्भुत है। 50 बिलियन न्यूरॉन्स है जिसकी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और अपने आप को
दिव्यता के करीब जा सकते हो, मीन्स आप देव भी बन सकते हो, दानव भी बन सकते हो। चॉइस हमारी है क्या करना है, बराबर है। तो इसको मनुष्य को ही ये मिला है कि वो अपनी प्रोग्रामिंग चेंज कर सके, और प्रोग्रामिंग चेंज करके दिव्यता का अनुभव कर सके, निर्भय बन सके, अभय बन सके। अभी मैंने कल ये भी बताया था, जब मन कमजोर है तो हर परिस्थिति एक समस्या है। जब मन बैलेंस्ड है तो हर परिस्थिति एक चैलेंज है। जब मन मजबूत है तो सभी परिस्थिति हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और ऊपर उठने के लिए, और ऊपर। तो जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा हम और अपने को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, ये सब याद है? जी याद है। अभी और भी चीज मिली है हमको। 50 बिलियन न्यूरॉन्स तो मिले हैं। अगर 50 बिलियन न्यूरॉन्स में जीरो कितने हैं, अगर आप भी ये भी सोचेंगे ना, तो आपको लगेगा अरे इतने सारे जीरो पूरी जिंदगी निकल जाएंगी तो भी आप 50 बिलियन तक काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनेंगे तो। 50 बिलियन न्यूरॉन्स तो दिए हैं, 60 ट्रिलियन सेल्स दिए हैं, उससे भी 1000 गुना ज्यादा सेल्स मिले हैं। एक एक सेल आपको स्वस्थ रखने के लिए बने हैं। एक एक सेल को पोषण मिलता है खून के द्वारा, ऑक्सीजन भी मिलता है, पोष सत्व भी मिलते हैं, तत्व भी मिलते हैं। हमारा शरीर अपने आप को शुद्ध रख और स्वस्थ रहने के लिए पूरा संपूर्ण व्यवस्था प्रकृति ने हमारे लिए की है। समझ गए? तो हमारी संपूर्ण व्यवस्था है स्वस्थ रहने की। 50 बिलियन न्यूरॉन्स, 60 ट्रिलियन सेल्स, और ट्रिलियंस ऑफ गट बैक्टीरिया दिया है। गट बैक्टीरिया को हम दूसरा दिमाग भी कहते हैं, सेकेंड माइंड। तो ये सेकेंड माइंड जो है हमारे शरीर के पाचन के लिए भी है, हमारे स्वभाव को भी अच्छा रखता है। तो हमारे शरीर में अच्छे गट बैक्टीरिया होने चाहिए, और बुरे गट बैक्टीरिया भी है। जैसे अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है, वैसे हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरियाज भी है जो हमारे शरीर के लिए, शरीर को मदद करते हैं स्वस्थ रहने के लिए, खुश रहने के लिए, मस्त रहने के लिए। तो ये सब तो हमको दिया है। इसके उपरांत ये देखो, इतना अद्भुत शरीर हमको मिला है। देखिए कितनी सारी चीज कनेक्टेड है। समझ में आया? हमने बड़े बड़े कंप्यूटर्स बना दिए, स्पेस शटल भी बनाए, स्पेस रॉकेट भी बना दिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक मानव शरीर हम नहीं बना सकते। इतना मानव शरीर जो हमको फ्री में मिला है। तो ये मानव शरीर को चलाने के लिए हमारे शरीर में कितनी नस नाड़ियां दी है वो भी देख लीजिए। 72,000 नस नाड़ियां है। 72,000, 72,000 नस नाड़ियां है जो हमारे शरीर को पोषण देती है। और ये नस नाड़ियां जो है हमारे शरीर को पोषण देती है, सत्व देते हैं, और जो काम की नई चीज है वो लेके भी जाते हैं। ये 72,000 नस नाड़ियां को अगर मैं यहां से ज्वाइन कर दूं, मैं जोड़ दूं एक साथ लाइन में 72,000 नस नाड़ियों को, तो कितनी लंबाई होगी? कोई बता सकता है? ये नस नाड़ियां 72,000 अगर मैं जोड़ दूं तो कितनी लंबाई हो जाएगी? कोई बता सकता है? करीब 600 किलोमीटर। हाँ? 600 किलोमीटर का आसपास। क्या ब्रह्मांड ना? पूरे ब्रह्मांड को नाप सकते हैं हम लोग आए। नहीं नहीं, ये नस नाड़िया को अगर मैं ज्वाइन करके ऐसा एक सीधी लाइन में लेके जाऊं तो दिव्याशीष आश्रम से कहा मैं कहां तक जा सकता हूँ? पहाड़ के नीचे जा सकता हूँ, मंडी बस स्टॉप पे जा सकता हूँ, और कहां तक कितनी लंबी है? अगर मैं एक साथ जोड़ दूं तो कितनी लंबी हो जाएगी? करीब करीब 600 किलोमीटर। कितनी? 36? 600। 600 किलोमीटर। और कोई?
अर्थ को हम 3 बार ही घूम सकते हैं, नॉर्थ हाँ? पोल टू। अर्थ को 3 बार ही घूम सकते हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये जो है पृथ्वी का करीब 2.5 चक्कर लगा सकती है। अभी पृथ्वी का डायमीटर कितना है बड़ा, आप सोच लीजिए। तो इतनी लंबी है, हमको पता भी नहीं है। हमारे को सब फ्री में मिला, ईश हमें देते हैं सब कुछ। तो ये सब भी हमको दिया है हमारे शरीर को ठीक से चलाने के लिए। इतना अद्भुत हमको मिला है, अद्भुत दिमाग मिला है, अद्भुत ये नस नाड़ियां मिली है, ये हमारे शरीर में ये जो गट बैक्टीरिया मिले हैं, सब कुछ मिला है, इतने सारे सेल्स मिले हैं हमें स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन फिर भी हम सब बीमार है, पूरा विश्व बीमार है। क्यों? ये प्रश्न हमारे सामने होना चाहिए। इतना अद्भुत शरीर मिला है, जब तक इस पे चिंतन मनन नहीं होगा कि ये अद्भुत शरीर मिला है, हमको फ्री में मिला है, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि हमने कोई मेहनत ही नहीं की, ऐसे ही मिल गई। नहीं, आपने कोई सत्कर्म किए थे इसलिए मनुष्य शरीर मिला है। आपने कुछ सत्कर्म किए हैं इसीलिए आपको ये तपोभूमि में आने का मौका मिला है। आपके कुछ पुण्य है इसलिए ये सब आपको सुनने को भी मिलता है। लेकिन यात्रा तो बहुत लंबी है, ये तो शुरुआत है। तो ये अद्भुत शरीर का सदुपयोग करेंगे तो परम सुख, परम आनंद का भी हम अनुभव कर सकते हैं। बाहर से कोई सुख और आनंद की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। बाहर से जो आएगा वो आएगा, लेकिन भीतर शांत रहना चाहिए। और भीतर शांत है तो ये दिव्य अनुभूति हम कर सकते हैं। ठीक है? ये देखो, ये अद्भुत शरीर, एक साथ लाखों चीजें चल रही है। नाक सांस ले रहा है, दिमाग अपना काम कर रहा है, लंग्स अपना हवा ले रहा है, फिर हार्ट अपना पंपिंग कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, लीवर अपना काम कर रहा है, हर सब कुछ अपने आप से हो रहा है। आपको पता है आपके शरीर में इतना सारा काम हो रहा है, इतना दिव्य शरीर बना है। आपको सिर्फ दिव्य सोच लानी है और दिव्य कर्म करने हैं। तो यहां पे जो हमने ब्रिदेरियन से मिले, जो दिव्य अनुभूति के मार्ग पे चल रहे हैं, हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जितना हमारे से हो सकता है। यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन प्रेरणा तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो यही सब चीज हमको समझनी है। अभी पंच कोश से हमारा शरीर बना है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। और आनंदमय कोश के परे है आत्म अनुभूति। अगर हमारा आनंदमय कोश ही सही नहीं है, गलत है, तो बाकी सब कोश पे काम करना बहुत कठिन है। और करेंगे तो भी पार्शियल रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले अन्नमय कोश पे काम करना पड़ेगा। अन्नमय कोश पे काम करेंगे तो प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश पे काम करना आसान हो जाएगा। और जैसे जैसे इस पे काम में करते जाएंगे, वैसे वैसे भीतर का आनंद की अनुभूति हम करते जाएंगे। भीतर के आनंद की जितनी अनुभूति करते जाएंगे, उतनी दिव्यता हमारे भीतर बढ़ती जाएगी। और ये दिव्यता के अनुभूति जैसे करते जाएंगे, वैसे ही हम ईश्वर की शक्ति के करीब जाएंगे और उसके समीप रह सकते हैं, उसके नियम के अनुसार रहेंगे। तो दिव्यता का अनुभव करेंगे और ये जीवन को सार्थक कर सकते हैं। ये बीमारियां आई हैं आपको जगाने के लिए, दुख आए हैं जगाने के लिए। तो जागो सोने वालों, सुनो मेरी ये कहानी। और ये सुन के आपको जागना है और आपके भीतर एक परिवर्तन लाना है। आपके खान पान में, आपके आचार विचार में जितना आप लाएंगे, उतना आप शरीर से तो स्वस्थ हो ही जाएंगे। और फिर आगे भी हम जा सकते हैं। बराबर है? अभी मुझे ये बताइए कि हमें बीमारियां क्यों आई है। आप लोग कारण बताइए, क्या क्या कारण है, किसके वजह से ये आपको ये बीमारी आई, बताइए। लाइट चालू कर दीजिए। ये बीमारी जो भी है, कैंसर के लिए आप लोग आए हैं, तो आपको कैंसर क्यों आया बताइए मुझे। लाइट चालू कर दीजिए।
गलत बीमारी प्रकृति क्यों आई है? लाइट लाइट चालू कर दीजिए। प्रकृति विरोध न खान विचार। लाइट लाइट चालू कर, हाँ अभी मुझे कोई आके नजदीक में आके बताए, जल्दी जल्दी बताए, बीमारी आपको क्या बीमारी और क्यों आई? हाँ, प्रणाम सर। सर, बीमारी का पहला कारण है कि हमारे विचारों, जो हमारे विचार हैं वो पूरी तरीके से दूषित हो चुके हैं। दूषित बिल्कुल। यानी कि घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, ये हम हर किसी के मन में है, और लालच। हम्म। दूसरा कारण है कि जो हम आहार ग्रहण कर रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, वो सात्विक नहीं है। और बराबर। तीसरा है कि वो प्रकृति के भी विरुद्ध है। बराबर जो है। प्रकृति ने, जो नेचर ने हमें दिया है, वो उसके भी पूरी तरीके से विरुद्ध है। और हम क्या कर रहे हैं, जो जानवर हैं या पशु पक्षी हैं, उनका भी हम हिस्सा छीनकर खुद ग्रहण कर ले रहे हैं। तो हम उनके साथ भी हिंसा कर रहे हैं। आस्ते है, बराबर। आस्ते यानी कि जरूरत से ज्यादा, जो कि हमें जरूरत भी नहीं है, उतना सामान हमने इकट्ठा कर रखा है जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। हमारे जीवन में तप नहीं है। हम किसी भी चीज में ना, हर चीज में हम चाहते हैं और जो ये और की भावना है, यही हमें ढकेल देती है। जो आज का ये जीवन है, उसमें हमारे पास जितना मिल जाता है, हमें उतना ही कम लग रहा है। हमारे बराबर। जीवन में स्वाध्याय नहीं है, यानी हम्म। कि हम स्वयं का, खुद का अध्ययन नहीं करना जानते। बराबर है। और अध्ययन नहीं करना जानते तो हम प्रत्येक चीज, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उसमें हम जागरूक नहीं हैं। यानी कि हम सो रहे हैं, हम उसमें जागरूक नहीं हैं। हम खा रहे हैं, उसमें जागरूक नहीं है। हमारे अंदर कृतज्ञता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। क्योंकि कृतज्ञता का जब भाव होता है, तो हम क्या करते हैं, हर चीज के प्रति हम कृतज्ञता महसूस करते हैं। परंतु धन्यवाद आज सर। के मोड में हम कंप्लेनिंग मोड में आ चुके हैं। हर या चीज में हमें सिर्फ कमी और कंप्लेन दिखाई देती है। बराबर तो है। ये बहुत सारे और भी कारण हैं, क्या परंतु नाम है ये। आपका? जी, पूजा शर्मा। पूजा शर्मा। आप जी। आप यहाँ ये शिविर में आप क्यों आए हैं? जी, मेरे को कल आपने जैसा कि दिखाया था कि जब हमारा मन है वो वीक होता है, तो मेरा मन वीक हुआ। और परिस्थितियों के कारण, स्ट्रेस के कारण, और जो भी मैंने ये अपने अनुभव बताए, ये मेरे जीवन में आए थे। जो मैंने अभी ये बताए हैं कारण, उनके कारण मैं बीमार हुई। और बीमारी के कारण मेरा जो मन है वो कहीं ना कहीं इतना डाउन हो चुका था कि मुझे लगा कि मेरे जीवन में अब सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर मुझे लगा कि कौन सी अगर बीमारी आई? ऐसे। कौन सी बीमारी आई आपको? जी, मुझे कैंसर है। कैंसर है। व्हाट्स योर फिजिकल एज राइट नाउ? आपकी उम्र? सर, वैसे तो ये मैटर नहीं करता है, बट दिस इज टू मोटिवेट द अदर। 27 हाँ, सर। 27। या। लेकिन देखिए, मैंने आपकी वाणी सुनी, जी। लगता है कि आकाशवाणी हुई है, इतनी आपकी वाणी है। मैं आपको बता धन्यवाद। देता हूँ कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ये सोच रखना और ये थैंक यू सोच में जीना। सर। अभी बीमारी को टिकने का जगह ही नहीं, कुछ खाना दे ही नहीं रहे हो। बीमारी को हम पोषण देते हैं, आपने सब पोषण निकाल दिया, उसको कुछ खाना नहीं देते हो, कोई फर्टिलाइजर नहीं डाल रहे हो, तो कैसे टिकेगी बीमारी? आपकी बीमारी तो ठीक हो गई है। सर, आप मेरी बीमारी आज से 4 साल पहले ही ठीक हो गई थी, जब मैंने इसको अपॉर्चुनिटी बना लिया था। या और उस अपॉर्चुनिटी के कारण ही सर बहुत कुछ सीखना स्टार्ट किया। तब समझ में आया कि ये प्रकृति तो हमें ऐसे खुले हाथ से दे रही है, हम ही लेना नहीं जान रहे हैं, और हमारे पास ही पात्रता नहीं है। बराबर है, क्योंकि हमें हर भौतिक चीजें चाहिए। भौतिक चीजों की प्राप्ति में हम पागल हो चुके हैं। ये मनी बेस्ड इकोनॉमी है, तो हर कोई की पहचान पैसे से ही हो रही है। तो ये भ्रम में पहुंच गए हैं। जो मिला वो भी दुखी है, जिसको नहीं मिला वो भी दुखी है, वो भी दोनों बीमार हैं। पर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आने आके बताना चाहता है? बहुत बहुत थैंक थैंक खान पान में क्या क्या गलतियां की, पहले बताइए। खान पान में क्या क्या गलतियां की, बताइए मुझे। कितने हो? गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। तो ये मेरी यही सोच है कि जो कोई बीमारी हमारी मिली है वो हमारी स्वार्थपूर्ण भावना है। हमारा हम्म। लालच है जो कभी खत्म होता ही नहीं है। बराबर हम है। से हर कुछ पाना चाहते हैं, बराबर लेकिन है। देना कुछ नहीं चाहते। अगर हम कुछ देना चाहे तो बिना मन के देते हैं। वो बराबर अंदर है। से दुखी होते हैं देने से पहले। अरे बराबर ये है। मेरा जा रहा है कुछ। बिल्कुल और जो सही। मिला, जो मिला उससे बस कम, अरे ये बहुत कम मिला है और मेरे से उससे ज्यादा लेना है। और यही लालचपूर्ण भावना और स्वार्थपूर्ण भावना है। नहीं, दूसरे को ज्यादा क्यों मिला उसका दुख भी है। वो भी दुखी है, दूसरे सुखी क्यों है।
मेरा मैं दुख नहीं वही है तो बोलता हूँ, परमात्मा दूसरे सुखी क्यों है? बराबर है। तो दूसरे मेरे से ज्यादा सुखी क्यों है, दूसरे को ज्यादा क्यों मिला है, जी मुझे सर। कितना जरूर है वो पता नहीं है, लेकिन वो संग्रह करने की होड़ लगी है। जी सर। उसी के कारण ही, जिसको हम तृष्णा कहते हैं, कि उस जिसकी कोई तृप्ति ही नहीं है, उसकी हम्म। ओर है। तो ये तो हो गए फिजिकल फूड में क्या क्या गलत खान पान किया मुझे। कितनों को यहाँ नशा किया है, पान बिगड़ी सिगरेट तंबाकू खाया है। बताइए मुझे, यहाँ सत्य बोलना है, देखो कोई शर्म किसी को छुपाना नहीं है। सर हाँ, नहीं, वो भाई, क्या क्या लेते थे आप? मैं सर सिगरेट पीता था। सिगरेट पीता। पीछे एक भाई है, उसको भी आगे बुलाइए। आइए आइए, आगे आइए, आगे आके बताइए। दे रहे हैं उनको। आइए आगे आइए, जल्दी आठ जल्दी। लोग। तो भाई जी 8 लोग हैं। हाँ हाँ, 8 लोग हैं। नमस्कार हाँ सर। हाँ, मैं बताइए जल्दी। तंबाकू और सिगरेट पीता था। तंबाकू और सिगरेट। सिगरेट। शराब पीते थे? वो नहीं। पहले पीता था, कभी कभार पीता था, लेकिन सब सब कर ठीक लिया है। है। और कौन आना चाहता है? और कौन आना चाहता है? सुरेश सुरेश भाई। सुरेश भाई। नशे के कारण जो बीमार हुए। प्रदीप भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं सन 1992 से डेली ड्रिंकर और डेली चैन स्मोकर रहा। हाँ हाँ 1992 से 2019 तक हाँ हाँ। डेली ड्रिंकर, डेली चैन स्मोकर, हम्म जिसमें इतने सालों में एक दिन भी मेरा बिना शराब के और बिना सिगरेट के नहीं गया था। हम्म और 1.5 लीटर के करीब शराब, और समझो 5 या 6 पैकेट सिगरेट, ये मेरी हम्म। डाइट। अच्छी खुराक लेते थे फिर सब लोग। पहले तो सुरेश भाई जी, आपको नमन है, वंदन है। डेली शराब, डेली सिगरेट, उसकी बर्बादी भी आपने देख ली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। ये बर्बादी में से जो आपने जो सीखा, और जो प्रेरणा के स्रोत बने हैं, और आप जो काम कर रहे हैं, आपको नमन है, वंदन है। सभी जो है, उठ के जोरदार तालियां बजाए सुरेश भाई जी के लिए। जोर से तालियां होनी चाहिए, तालियां होनी। सुरेश भाई जी बैठिए 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 बैठिए, आप बैठिए 2 मिनट। आपने खान पान में तो चेंज कर ली है सुरेश भाई जी। और क्या चेंज और चाहते हैं आप, बताइए, और क्या परिवर्तन आप में लाना चाहते हैं? फिर मेरे हिसाब से जितना आना चाहिए था वो परिवर्तन मेरा आ चुका है अब भी। तो और मन के जैसा, लेवल पे क्या परिवर्तन लाना चाहोगे और भी? हाँ, मन के लेवल पे वो तो शांति का जो है मन में, कि एक शांत मन भी हो। लेकिन वो अभी जो मेरा लक्ष्य है, जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होगी वो मेरे को नहीं मिल सकता जब तक। नहीं सुरेश भाई जी, मैं यहाँ बताता हूं कि शांत मन जो कर सकता है, वो अशांत मन कभी भी नहीं कर सकता है। आपकी बहुत सारी ऊर्जा अशांत मन ले जाता है, आपका सुख चैन भी छीन लेता है। तो आपने ये शरीर के लेवल पे जो खान पान में चेंज किया है, आप में जो एनर्जी है, सुबह से लेकर रात भर आप काम करते हैं, शक्ति करते हैं। और भी ऊर्जा बढ़ाइए, भीतर की शांति को जगाइए। और भीतर की शांति जगा के देखिए कि आपकी एनर्जी जो भी है अभी, मान लो कि एक्स है, वो सीधी 2x 3x 5x हो जाएगी। और आप जो काम कर रहे हो, उससे अनेक बड़ा काम कर सकेंगे। तो अभी मन की शांति के लिए काम कीजिए, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। और आप ये भी पराक्रम करके दिखाएंगे, ये मुझे संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास है कि ये अभी शरीर के लेवल पे तो गलत खान पान मैंने छोड़ दिया, शराब सिगरेट तंबाकू जो भी खाते थे छोड़ दिया। अभी मन के लेवल पे जो भी है, मेरी सुख शांति को जो डिस्टर्ब करता है, उसको भी मैं छोड़ूंगा। ये संकल्प कर लीजिए और देखिए सुरेश भाई जी जो है 5x हो जाएंगे, जो कर रहे हैं उससे 5 गुना बड़ा काम कर सकेंगे। वाह 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 वाह, बहुत जय बहुत धन्यवाद सुरेश भाई जी। थैंक यू थैंक यू। संगीता तो बहन जी। नशा है, और नशा के अलावा क्या, और क्या खान पान में गलतियां की आप बताइए, जल्दी से बताइए। बताओ बताओ ना, कोई बात नहीं, खुल के बताओ जो भी, कुछ नहीं। मैं सही हाँ, है, चार जल्दी नंबर जल्दी जल्दी बताइए। गुरुजी नमस्कार। हाँ, गुरुजी मैं ये नशे पीछे का की लाइट बहुत आ रही है, वो खिड़की के पर्दे लगवा दीजिए ना, लाइट आ रही है बहुत। थोड़ा सा ये घुमा वो हाँ सूरज ठीक है, अभी अभी ठीक है। हाँ हाँ, बताइए। गुरुजी नमस्कार। हाँ
जी मैं 17 साल की उम्र में फौज में चला गया था, आर्मी में। और हाँ वहां से लगभग ये नशे का आदि, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट मतलब एक हैबिचुअल तो नहीं, बट हो चुका था, मतलब दारू पीने, ड्रिंकिंग का हैबिट मुझे लग वहां चुकी तो थी। आपको फ्री में मिलती है ना। हाँ, कुछ भी कारण रहा हो, मतलब वहाँ कुछ कल्चर भी इस तरह का है। यहाँ से देख के वो, हाँ। और वहाँ लगभग मैं 17-18 साल तक मैंने जॉब की। उसके बाद मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर में मेरा सिलेक्शन हो गया। और यहाँ भी लगभग मेरा वो रूटीन, तो दारू तो कम होगी, बट बाकी जो रूटीन था वो वहाँ आर्मी से भी बेकार था यहाँ, क्योंकि ड्यूटी इस तरह की थी, हम्म, लगातार 24-24 घंटे ड्यूटी करते रहो। तो हम्म। वो, और फिर खाने का पूरा रूटीन बिगड़ा। और मतलब मुझे लग रहा है कि मेरे बीमारी का यही कारण है कि नेचर के अगेंस्ट में चला गया, और ये जो गंदी आदतें थी ये इनमें इन्वॉल्व रहा। तो अब मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ आप लोगों की शरण में आया हूँ। तो मुझे मतलब यहाँ से मेरी बीमारी से, और मैं अपने मन पे जो काम कर रहा हूँ, मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूँ कि मुझे सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, खान पान के लेवल की बातें हैं तो हम सभी प्रकृति के नियम तोड़ रहे हैं। हम पकाया हुआ भोजन लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। हम सभी जो है जंक फूड के जमाने में आ गए हैं। जंक फूड खाते हैं। आप कुछ बताना तो बताइए। नमस्कार सर। मैं भी थोड़ा नशा करती थी, पान खाती थी टोबाको डाल के। तो वो फैमिली चारों तरफ खाते थे, उसको उनको देख के ही खाते थे, और घर का माहौल भी ऐसा था, ऐसे खान पान भी ऐसा ही था। तो इसीलिए मेरा वो हुआ था। तो वो मैं छोटी से क्लास 6 या 7 से लेती थी थोड़ा थोड़ा। तो बाद में जब कैंसर हुआ फिर छोड़ दिया। बराबर, तो कैंसर ने आपको जगाया, लेकिन हाँ, आपकी वजह से औरों ने छोड़ा कि नहीं? मेरी वजह से औरों ने छोड़ा। हाँ, मेरे हाँ दोस्त बिल्कुल। अभी आपको जो है यहाँ से ठीक होके औरों को नशा मुक्ति में लगना है। नशा मुक्ति में से आपको सबको छुड़वाना है। हाँ बराबर सर। है? तो ये मिशन रखिए। ठीक है। हाँ ठीक है। कोई हाँ सर। कारण होना चाहिए। अभी स्वस्थ होने के बाद क्या करना है? मेरा वो स्वस्थ होने, ये तो स्वस्थ तो मैं हो ही गई हूँ। और मेरा ये मेरे लाइफ का जो पथ था वो ही अब मेरा अभी घूम गया है। तो मेरा जीवन का लक्ष्य कुछ और ही बना लिया है मैंने। ठीक है, ठीक है, ठीक थैंक है। अभी देखिए, 8 बजने को आए हैं। अभी मुझे ये पूछना है, यहाँ आप जो भी आए हैं प्रकृति के शरण में आए हैं। अंधेरे दिख रहे हैं। आप अगर स्वस्थ हो गए तो क्या करेंगे वो डिसाइड करो। फिर से आप घर पे जाके जॉब करेंगे, काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, ये करेंगे कि फिर से वो गलतियां रिपीट करेंगे? जी, ये आपको जो जीवन दान मिलेगा तो आपका आगे का जीवन कैसा होगा वो पहले मुझे बताइए। कौन बताना चाहता है? जल्दी से शॉर्ट शॉर्ट में बताइए। आइए आगे, आइए आइए, जल्दी से। मेरे को यहाँ से आगे जा करके अपना लक्ष्य साध लिया है, मैंने पहले से प्रण कर लिया है। मैं पूरी जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए, सभी सामान्य जनता सबके लिए मैं पूरा ये अपने आगे आने जो जितना मेरा वो है भविष्य, उसको सब मैं उसको समर्पण कर दूंगा जनता के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन बोल बताना चाहता है? जल्दी आइए। और कोई आना चाहता है? आप स्वस्थ हो गए तो क्या करेंगे? पता है नहीं क्या करेंगे? नमस्ते गुरुजी। मैं स्वस्थ होके जाके हो गई हूँ, और अभी सेवा कर रही हूँ। और तेरे को क्या था, मैं कैसे मैं हाँ कैंसर था, अब ठीक हो गई हूँ, और अभी हाँ यहाँ पे हाँ। सेवा कर रही हूँ, और आगे का जीवन भी इसमें समर्पित कर रही हूँ। एक दिन निर्जल है, एक दिन समर्पित करने में क्या करेंगे वो बताओ। हाँ, बस यही सेवा करूंगी जैसे इस गुरु जी रास्ते कर पे रहे, ये रास्ते पे ANDS में क्या समाज नाम के क्या है आपका? संगीता। और अभी यहाँ पे हो ना, मोरबी में सेंटर खुला है ना, उसमें जाना है मुझे। ठीक है, वहां ठीक पे है। नाम भी लिख दिया चलो, मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक चीज याद रखिए। हाँ ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। एक दिन और कोई निर्जल है जिसको बताना है? नहीं, ठीक। और कोई है? राम सर।
सर वैसे तो अभी कार्य कर रही हूँ साथ में, और कल रात भी मैंने पिताजी से बात कर रहे थे हम, तो हम सोच रहे थे कि इसी जुलाई में मेरा और पिताजी का जन्मदिन है। 1 जुलाई को पिताजी का और 30 जुलाई को मेरा। तो हमने सोचा हम वृक्ष लगाएंगे पापा जी। पहला तो संकल्प हमने यहाँ से लिया कि हम प्रकृति को कुछ देंगे। जो प्रकृति, वैसे हमने पहले भी वृक्ष लगाए हैं मैंने, और अभी 21 जून को भी वृक्ष लगाए थे, 11 वृक्ष लगाए थे। और अभी भी संकल्प है कि आगे प्रकृति को कुछ देना है, लोगों को कुछ देना है, अवेयर करना है लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति, प्रकृति के प्रति, और भी अपने विचारों के प्रति। और अभी भी मैं वो कार्य कर रही हूँ लास्ट 3 सालों से। लोगों को अवेयर करना प्रकृति के प्रति, अपने प्रति, और मेडिटेशन करवाना, ये मैं सब कर रही हूँ योग नेचुरोपैथ के थ्रू। मतलब यानी कि जो प्रकृति ने हमें दिया है उसी के थ्रू लोगों को हील करने के लिए। और ये कार्य अभी भी जारी है जो मिला और है उसको अभी भी लौटाना जारी है। रखूंगी। ये जो हाँ मिला है उसको लौटाना है। जी तन से, मन से, धन से, जो हो सकता है वो करना पड़ेगा। जी जी, जो मुझे मिला क्योंकि है वो कोशिश है कि मैं औरों को दे जो सकूं। मिला है आपको, जिस रूप में मिला है उस रूप में जी आपको बांटना है। जी आपको जी ज्ञान मिला है तो ज्ञान बांटो, समय मिला है तो समय बांटो, धन मिला है तो धन बांटो। लेकिन बांटने का जो मौका आता है ना, हर कोई बढ़ जाता है। हम और लोग, सबसे भी उत्तम प्रेम। जब आप या किसी ये को वो प्रेम जो देते मिला हो। है, या जी आनंद मिला है, प्रेम मिला है, खुशी मिली है, जब भी आप बांटेंगे तो हमारे शरीर में से ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं जो आज का मॉडर्न साइंस लेबोरेटरी में पैदा नहीं कर सकता है। अद्भुत जी मिला है हमें शरीर, जो चाहिए वो सभी केमिकल्स अंदर बन सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे भीतर भी एक डॉक्टर है, और भीतर ही एक दिव्य दवाखाना भी है, दवाई भी बना सकता है। तो जी डिवाइन डॉक्टर विद इन एंड डिवाइन फार्मेसी विद इन, दोनों अंदर है। खाली उसको जगाना है, और जगाएंगे तो अपने आप को तो स्वस्थ कर ही सकते हो, और सामने वाला जो आया है, जो दुखी है, बीमार है, उसके अंदर भी ये जगा सकते हैं, और उनको भी परम स्वास्थ्य की मोटिवेट करना। ले जी ले जा सकते हो। तो बाहर के डॉक्टर की कम से कम जरूर पड़े, बाहर की दवाइयों की कम से कम जरूर पड़े, ऐसी व्यवस्था हमको करना है। इसमें हमको लगना है, और यही काम हमारा होना था। हम हमारा रूटीन काम तो करेंगे ही, अगर कमाना है तो कमाने में भी समय डालेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली घर चलाना है, फैमिली चलानी है। लेकिन जो भी एक्स्ट्रा समय मिला है, ये मोबाइल पे बैठ के, व्हाट्सएप पे बैठ के, चुगली करके, ये करके वापस वही गलतियां करने में नहीं डालनी है। परम लक्ष्य जो हमें मिला है, ऊपर वाले ने हमको जगाया है, तो ये जगाया हुआ मैसेज जन जन तक हमें फैलाना है। जाना और है। ये जन जन तक फैलाएंगे तो ही ये जीवन हमारा सार्थक है। और जी यही जीवन जो है, हम अगर करेंगे जिंदगी के अंतिम क्षण तक, तो हमारा जो है प्रमोशन होना फिक्स है। जी 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 स्वस्थ बहुत आए हैं, आए तो बीमार होके, आए रोते हुए। जो देखो ये गाना है ना, रोते रोते आए हैं, हंसते हंसते हमें जाना अच्छे है। तो जाना एक ही है। लक्ष्य रखिए, हमें हंसते हंसते जाना है, समता में स्थिर होके जाना है। मैं अभी तक आपको जो भी बता रहा हूं वो खाली माइंड का ही बताया, खान पान की मैंने कुछ बात नहीं की है। तो ये सब चीज हमको करनी पड़ेगी, अपने आप से बात करने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं कहाँ गलत हुआ हूं, और अपने आप को स्व सुधारना के मार्ग पे जाना पड़ेगा। अपने आप को सुधारना ही पड़ेगा भीतर से। अगर भीतर से हमने अपने आप को नहीं सुधारा, हमको चाहिए कि गवर्नमेंट आके, पुलिस आके डंडा मारे तो ही हम सुधरेंगे, तो वो नहीं होगा। अपने आप को ही अपना सुपरवाइजर बनाना पड़ेगा, अपना निरीक्षक बनाना पड़ेगा, और अपना जज भी हमको बनना पड़ेगा, जो हमको दिव्यता की ओर ले जाए। तो ये खुद पे काम करने का मुहिम है, ये करेंगे तो ही ठीक होंगे। खान पान जी अपनी जगह पे महत्व है, लेकिन सिर्फ खान पान नहीं है। गलत सोच उससे बड़ा कारण हो गया। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है, अनिद्रा एक बड़ी बीमारी हो चुकी है। नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि गलत सोच चल रही है। गलत विचार, गलत ये सोच, गलत गलत सोच, भाव। गलत विचार, गलत भाव होते हैं, द्वेष और दुर्भावनाएं जागती है। ठंडी में भी पसीना छूटता है, कारण एक ही है, गलत सोच। तो शरीर प्रतिक्रिया करता है। तो जी ये जी सभी का परिवर्तन जरूरी है। खान पान का भी परिवर्तन बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि उसमें भी हम भटक चुके हैं। क्योंकि हर चीज कमर्शियलाइज हो चुकी है, हर चीज में से इंसान को पैसा कमाना है।
बीमारी से में भी पैसा कमाना है, दुख में से भी पैसा कमाना है, भोग में से भी पैसा कमाना है। ऐसा करना है। सबसे पहले हम भोग में फंसते हैं, क्योंकि भोग की बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है। भोग के कारण रोग आते हैं, रोग की भी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है, पूरी इतनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो चुकी है। और रोग के बाद भोग, भोग पहले भोग, भोग के बाद रोग, रोग के बाद दुख आया, तो दुख की भी इंडस्ट्री हो चुकी है। आपको गए जन्म में ले जाएंगी, अगले जन्म में ये हो जाएगा, गए जन्म में और ये था। सर अरे आजकल आ गया वर्तमान है में क्या? स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक हाँ, नया कोर्स आया है मार्केट में, स्ट्रेस मैनेजमेंट। नहीं, एग्रीड, स्ट्रेस मैनेजमेंट तो भी ठीक है, लेकिन मूल में भीतर में काम करवाइए। आप एक्सरसाइज करेंगे, ये एक्सरसाइज वो अपनी छोटी छोटी चीज है। पतंजलि ने जो है अष्टांग योग की बात की है, उसमें एक्सरसाइज एक बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन हम एक्सरसाइज को ही पूरा योग समझ रहे हैं। योग का मतलब जुड़ना, किसके साथ जुड़ना? उस दिव्यता दिव्य के शक्ति के साथ, साथ जुड़ना। उसके साथ जुड़ने की बात है। यहाँ तो हम एक्सरसाइज करेंगे, ये करेंगे, प्राणायाम करेंगे, वो है अच्छी चीज है, लेकिन वो अल्टीमेट नहीं है। पहले तो यम नियम का पालन करना आसन, पड़ेगा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो तो हम जो यही यम करना है, है लेकिन उसका ही बराबर है नियम वो पालन सब नहीं कर कर किया पाते। ही नहीं है। और फिर मैं जाके मैं बोलूंगा आसन करूँ, ये आसन आसन करूँ, फिर प्राणायाम करूँ, ये करूँ, उससे रिजल्ट पार्शियल मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। वो भी एक भटकाव हो चुका है। तो हर चीज को हमने कमर्शियलाइज कर चुके हैं, और कमर्शियलाइजेशन में क्या होता है? पॉपुलैरिटी चाहिए, पैसे चाहिए, तो सत्य दब जाता है। यहां हम सिर्फ सत्य की बात कर रहे हैं। आपको अच्छा लगे नहीं लगे मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं है, या मुझे उसकी परवाह भी नहीं है, मैं तो सत्य बोल देता हूं। जी। और परम सत्य बोलने वाले भी नहीं है, और सत्य सुनने वाले भी नहीं है। नहीं है। इतना सत्य सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। तो सत्य बोलने वाले भी नहीं बचे, सत्य सुनने वाले भी नहीं बचे, क्योंकि इतना सत्य डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। जी। लेकिन जो है, जिसका जो पात्र है वो करेगा। सत्य के मार्ग पे है तो सत्य बोलेंगे। शायद किसी को बुरा भी लगता होगा मेरा ये बोलना, लेकिन जो है वो मैं बता रहा हूं। और सत्य के मार्ग पे चलना ही पड़ेगा, और खुद जाग जाए और खुद ही सत्य के मार्ग पे चले, वो बहुत ही जरूरत है। तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। माता जी हैं? हाँ जी। माता जी, आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ भैया जी। हाँ माता जी, अभी आज तो जो प्रोग्राम में ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ चुके हैं। आपको हाँ, चाहिए तो आज शाम को चाहिए तो मुझे बोलेंगे तो मैं शाम को 8 से 9 भी ले सकता हूँ, बताइएगा। आप बताइए, सब कोई 8 से 9 राजी है? शाम को लेंगे भैया जी? जी जी हाँ, आज थोड़ा हाँ जी। आगे नहीं बढ़े, शाम को 8 से 9 लेंगे, राजी हो? जी। हाँ जी ठीक। अभी आना 8 से 9। सभी आएंगे? हाँ सभी रेडी हैं। रेडी है? हाँ जी सभी रेडी हैं। रेडी है बोल रहे हैं, 8 से 9। ऐसा में डॉक्टर तो साहब बहुत अच्छा है। देखो आज जो है हमें ब्रिदेरियन से मिलने का मौका मिला, संवाद करने का मौका मिला। आप लोगों को भी देख रहा हूं, और आप लोगों की जो एनर्जी लेवल जो है बहुत हाई है। नकारात्मकता आपकी नीचे जा रही है। और मैं आज आपको एक होमवर्क देता हूं। बचपन से लेके आज तक, अभी तक जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, जो आपने मन में पकड़ के रखा है, वो लिखना चालू करेंगे आप। लिखना क्या है? बताया मैंने? लिखना है, क्या बोल रहे हैं? हाँ। लिखना है। हम्म। बचपन से लेके आज तक आपके साथ जो भी अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो आपको बुरा लगा है, आज भी उसको याद करके आप रोते हैं, चिंतित हो जाते हैं, या दबा के रखा है, वो सब आपको लिखना है। और आपके पास ही ये किताब रखनी है, लेकिन लिखना है। जब तक वो दिमाग में पड़ा है वो लिखेंगे नहीं, वो बाहर आने आएगा नहीं। जो भी गलती आपने की है वो भी लिखेंगे, जो गलती दूसरों ने आपके साथ की है वो भी लिखना है। मैंने क्या बताया? जो गलतियां आपने की है वो भी लिखनी है। आवाज। हेलो, हेलो, हाँ जी अंकल जी। हेलो। हाँ, आ रही जो है? गलतियां, हाँ सुनिए मेरी बात अभी मैं, ठीक है, जो गलतियां आपने की है वो भी लिखना है। किसी को पता हो ना हो, आपको तो पता है, लिखिए। कोई गलतियां आपके साथ हुई है, किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया बचपन से लेके आज तक,
शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पे, व्यवहार के लेवल पे, वो आपको लिखना है। दोनों गलतियां लिखनी है, जो आपसे हुई है या किसी ने आपके साथ की है। तो करेंगे ये होमवर्क आप लोग? हाँ जी सर। ये अंदर से खाली करना है, ये बराबर लिखना है। मैं अगर वहां होता तो वहां वही आपको बिठाया होता, यही बैठो और यही लिखो। और आप आपसी बातचीत कम करेंगे, और किसी के साथ मिलेंगे तो धन्यवाद करेंगे या मुस्कुराएंगे। दो ही काम करनी है। प्रकृति के साथ जुड़िए, बाहर जाइए, आसमान की ओर देखिए, पेड़ पौधे की ओर जाइए, कहीं ना कहीं पे आवाज जमीन आवाज छू, और धन्यवाद देना उसको। प्रकृति को धन्यवाद देने की हर कोशिश कीजिएगा। ये जो हवा में पक्षी उड़ रहे हैं उसकी भी दिव्यता अनुभव कीजिएगा। छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उसको भी देखे, उसको भी धन्यवाद दीजिएगा कि आप है तो ये पृथ्वी का संतुलन है। इकोलॉजिकल बैलेंसिंग आप लोग ही करते हैं, तो हर चीज के लिए धन्यवाद दीजिएगा। चलो, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा से क्लास ले रहे हैं, आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा है, और सबका जोश जुनून बढ़ गई है, और सब ठीक हो गए हैं और अच्छे से आपका नहीं, सुन, और सबको ही शुक्रिया कर रहे हैं, आपका भी शुक्रिया क्या शुक्रिया। है, पहले मन मन से करना है। मन से स्वस्थ हो जाएंगे तो शरीर के लेवल पे खान पान चेंज करना, परिवर्तन करना पॉसिबल है। और मैं यहाँ ये भी बता देता हूँ, ये चीज मैं दिव्याशीष आश्रम में बोल रहा हूँ इसलिए प्रभाव ज्यादा है। यही चीज मैं अगर कोई 4 आदमी लोग बैठे हैं, किसी के घर में जाके बोलूं, उसका प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जो वातावरण में आप आए हैं, जो वातावरण आपके में, आपके अड़ोस पड़ोस में बना है, जो दिव्यता आप ये दिव्याशीष आश्रम में आए हो, उसका प्रभाव भी बहुत है। का ओरा का तो वातावरण का भी प्रभाव होता है। आपके भाव में भी परिवर्तन आ रहा है, तो जो बता रहा है उसको भी मजा और आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पे मेहनत कीजिएगा, पूरे टाइम अपनी अपनी जो कमजोरियां हैं, अपनी गलतियां हैं, उसको लिखते और लिखने की चल रखिए कि वो पुस्तक आपके पास ही रहेगी। आपको जो भी चाहिए, जो याद आया, जब आया तब लिखते जाइए। 1 लाइन आई, 2 लाइन, जो आया वो लिखते जाइएगा, लिखते जाइएगा, लिखते जाइएगा। फिर इसका आगे क्या करना है वो बाद में बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। रात 8 थैंक यू। बजे इधर फिर मिलेंगे सभी को।